پیپلز پارٹی کے ایم این اے مخدوم جمیل الزمان نے K4 منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ کراچی میں روزانہ 1 ارب ملین گیلن سے زائد پانی کی ضرورت ہے۔ حکومت کراچی کو 500 ملین گیلن پانی فراہم کرتی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عاجز جمالی سے۔ عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا اس K4 منصوبے کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے مٹیاری مخدوم جمیل الزمان جو سروری جماعت کے روحانی پیشوا بھی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور یہ خط لکھا ہے K4 منصوبے کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ K4 منصوبہ جو ہے وہ کئی برسوں سے جو تعمیر نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہو رہا، جس وجہ سے کراچی کے شہریوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1 ارب گیلن پانی روزانہ چاہیے کراچی کو، جبکہ کراچی کو اس وقت 500-600 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ K4 منصوبہ مکمل ہونے سے 650 ملین گیلن جو ہے وہ پانی میں اضافہ ہوگا۔ اس خط کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میں رکن قومی اسمبلی ہوں، اس لیے میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو اس معاملے سے آگاہ کروں، جس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مخدوم جمیل الزمان کے اس سے قبل بھی ایک تو ایسے بیانات آئے تھے جو سندھ حکومت میں رہتے ہوئے تاثر ایسا مل رہا تھا کہ وہ بیانات سندھ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں۔ آج پھر انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے۔ جی، وزیر اعظم کو خط لکھ دیا گیا ہے، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے کراچی میں غیر قانونی ریتی بجری کی کھدائی کا انکشاف سامنے آیا۔ ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلیم میروانی نے کمشنر کراچی اور IG سندھ کو لکھے خط میں کہا ہے کہ ملیر سے ریتی بجری اٹھانے والوں کے پولیس اور محکمہ معدنیات کے افسران سہولت کار ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاجز۔ جی دیکھیں، ملیر جو کراچی کا سرسبز شاداب پھلوں اور سبزیوں دینے والا ضلع تھا، آج کل اس کی تباہی کے مناظر ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلیم میروانی نے خط لکھا ہے کمشنر کراچی اور IG سندھ کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود، سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود، ملیر کے مختلف علاقوں سے مافیا جو ہے وہ ریتی بجری اٹھا رہی ہے، لیکن یہ مافیا کی سرپرستی جو کر رہے ہیں وہ SHO، محکمہ معدنیات کے افسران اور پولیس کر رہی ہے۔ لہٰذا اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کمشنر کراچی اور IG سندھ کو خط لکھا ہے۔ اس خط کے مطابق ضلع ملیر کے مختلف علاقوں، جس میں میمن گوٹ ہے، شاہ لطیف ٹاؤن ہے، گڈاپ ہے، اور ملیر کے مختلف علاقے ہیں جہاں سے ملیر ندی سے یا پھر سرسبز زمینوں سے ریتی بجری کے ہزاروں ٹرک روزانہ نکالے جاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی کئی برس قبل بھی یہ سلسلہ تھا، بعد میں یہ معاملہ عدالت میں گیا تھا اور عدالت نے اس پر پابندی لگائی تھی۔ اس وقت کراچی سے ریتی بجری نکالنے پر مکمل پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر ملیر کے مطابق ایسے لگ رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر بے بس نظر آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ محکمہ معدنیات کے جن افسران کو یہ کام روکنا چاہیے وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، وہ جو ہیں وہ مافیا کا ساتھ دے رہے ہیں، جس وجہ سے مافیا ریتی بجری نکال رہا ہے۔ تو اس صورتحال پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو روکا جائے۔ جی، اور اب بات کریں گے منکی پاکس کے خدشے کے پیش نظر عباسی شہید ہسپتال میں بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جاوید اقبال کے مطابق 12 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا۔ تفصیلات فرحان خان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں منکی پاکس کا خطرہ منڈلانے لگا، عباسی شہید اسپتال نے انتظامات مکمل کر لیے۔ منکی پاکس سے لڑنے کے لیے عباسی شہید اسپتال میں 12 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جاوید اقبال کے مطابق آئسولیشن وارڈ کے لیے 3 شفٹوں میں طبی عملہ تعینات ہوگا۔ 12 بستروں کا ہم نے وارڈ تیار کر لیا ہے، 10 منٹ میں وہ پھر تیار ہو جائے گا، تو وہ 24 آور اوپن رہے گا۔ اگر کوئی کیس آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی
वो इंटरटेन हो जाएगा। चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट शगुफ्ता सलीम ने बताया कि मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे मुतासिरा फर्द के जिस्म पर चेचक की तरह दाने नमूदार होते हैं। कि ये एक इन्फेक्शन डिजीज़ है, ये एक दूसरे के साथ आपको पता टच करने से और फिज़िकली रिलेशनशिप से जो है ना ये होता है, तो आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। प्रिकॉशंस इसकी ये है, ये काफ़ी पेनफुल डिजीज़ है, पेनफुल रैशेस हो जाते हैं इसके ऊपर, और आपके लिम्फोनॉइड्स जैसे ग्लैंड्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, ग्रोथ बढ़ जाती है, फीवर हाई ग्रेड्स रन करता है इसके अंदर। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मंकी पॉक्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। वायरल इन्फेक्शन मंकी पॉक्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें, मुतासरा फर्द से मेल जोल से इज्तनाब करें और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फारान खान, सिटी 21। कराची के मौसम की बात करेंगे। शहर कायद में नए मानसून सिस्टम की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, जबकि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं फारान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद में मानसून का नया स्पेल जो वो दाखिल हो चुका है। बेशतर इलाकों के अंदर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। अगर इलाकों की बात की जाए तो नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन और जौहर समेत बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वफ़े से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था कि शहर कायद के अंदर चौथा बारिश का स्पेल जो वो आज से दाखिल होगा, जिसके असरात जो वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। बेशतर इलाकों के अंदर, मगरबी इलाकों के अंदर बूंदाबांदी का सिलसिला जो वो जारी है, जबकि ये सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। 18 अगस्त तक जो ये स्पेल जो वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश बरसाएगा। जबकि अगर दर्जे हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि हवा की बात की जाए तो शहर कायद के अंदर मगरबी सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 14 किलोमीटर रिकॉर्ड की जा सकती है। हवा में नमी का तनासुब 86% रिकॉर्ड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने की वजह से मगरबी सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार जो वह खासा कम है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया था कि शहर कायद के अंदर आज एक नया स्पेल दाखिल होगा, जिसके असरात जो वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये स्पेल शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बूंदाबांदी के साथ तेज़ बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया था। जबकि दूसरी जानिब अगर इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात के अलर्ट जारी करते ही बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से भी जो वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे। मेयर कराची की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि शहर में जो वो बारिशों के पेश नज़र इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ, नालों की सफाई और दीगर नशीबी इलाकों के अंदर तमाम तर इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिए जाएँ ताकि किसी भी किस्म की कोई शहरियों को मुश्किलात ना हो सके। इस वक्त शहर कायद का मौसम जो वो खासा खुशगवार है। सुनहरे बादलों ने शहर कायद को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वफ़े से जो बारिश का सिलसिला भी जारी है। जी बात करेंगे शहर कायद में बिजली और गैस की बिला तातुल फ्राहमी ख्वाब बन गई। रामस्वामी गार्डन, लियारी, शेरशाह और मंगोपेर समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। बुनियादी सहूलतों की बिला तातुल फराहमी अवामी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। कराची में गैस 8 और बिजली 6 से 10 घंटों से गायब रहने लगी। गैस और बिजली की आंख मचुली से शहरी परेशान हो गए। कहते हैं लकड़ियों और गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं। रही सही कसर जनरेटर के अखराजात ने पूरी कर दी है। गैस और बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। सारा दिन यानी कि गैस नहीं है साहब, बिल्कुल सारा दिन। रात को भी हम चूल्हा जलाते हैं फटियों से, यानी कि खोखे लेके उससे जला के फिर खाना बनाते हैं। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी खाना नहीं बनता, क्या करें, परेशानी, बहुत परेशानी। वरना पहले तो बिजली के ऐसे हालात थे कि 2-2, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे नहीं होती थी लाइट, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है सूरत हाल। बिजली के बिल जो वो लगा रहे हैं दरअसल वो उनका भी कसूर नहीं, हमारे अपने बड़े जो बेटे हैं वो सारा कसूर उनका है। दूसरी जानिब तर्जुमान कलेक्टर का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि सूई सदन का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से सिस्टम में आने वाली गैस प्रेशर में कमी का सामना है। तमाम रोजाना की बुनियादों पर लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत दीगर इक़दाम किए जाते हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली गैस के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर न सिर्फ हल किया जाए बल्कि इन यूटिलिटीज़ की कीमतों को भी कम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अब्दुल क़य्यूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान मेयर कराची की कारकर्दगी पर बरस पड़ी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के साथ और भी टैक्स वसूल कर रही है। माजी में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वालों शहरों में शुमार होता था। आज इसकी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं।
हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त अली खुर्शीदी के साथ ही मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक के बिलों में रवा माह से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली जो है शुरू कर दी गई है। जिन भी सार्फिन के जो है इस माह के बिल आए हैं उसमें म्यूनिसिपल टैक्स जो है लग कर आया है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी। हम इनसे बात करेंगे और MQM का मौक़िफ़ जानेंगे कि MQM क्या समझती है कि इस टैक्स से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में कितनी मदद मिलेगी, और क्या लगता है आपको जो कि इलेक्ट्रिक के बिलों में ये टैक्स वसूल किया जा रहा है तो क्या शहर की जो सड़कें हैं, जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा? वेल देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस पे सिंध हुकूमत ऑलरेडी इन शहरियों से, और ख़ासकर कराची शहर की मैं बात करूं, उस पर टैक्स ले रही है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में अगर मैं 2022 के नंबर बताऊं तो वो 75 बिलियन रुपीस थे, और अब बढ़ के ऑब्वियसली वो 100 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अब 1.3% से बढ़ा के 1.8% कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सूबा जिसमें खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिसके मेयर साहब ने ये MU सिटी लगाया है, ये 150 मिलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो तो लगता हुआ नजर नहीं आता। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं MU सिटी के 4 अरब रुपए लगते हुए नजर आएंगे? ये तो मजाक है। आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कीजिए जनाब। ये MU सिटी का भी मसला नहीं है, इसके कंटेंट पे कोई मसला नहीं है कि ये टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। भाई आप सर्विस डिलीवरी तो कीजिए। पर क्लेम करते जी मुस्तफा कमाल के दौर में लगा। भाई मुस्तफा कमाल ने अपने 4थे साल में जब 300 अरब रुपए शहर पर लगा दिए थे, रोड नेटवर्क बना दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया था, सेहत तालीम का निज़ाम बेहतर कर दिया था, ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार हो गया था। तो उसको सस्टेन करने के लिए ये MU सिटी का जो है वो एक मैकेनिज्म लाया गया था। कर्जों के पैसे पे लेके आप इनॉग्रेट करते हैं और कहते हैं KMC कर रही है, मेयर कर रहा है। मेयर तो कुछ भी नहीं कर रहा जनाब। मेयर अगर कुछ कर रहा होता तो ये थोड़ी थोड़ी बारिशें जो हो रही हैं उसमें शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को अपनी कारकर्दगी जो है मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इनका ये कहना है कि ये टैक्स आज की बात नहीं, ये साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी लगाया गया था। जिस वक्त ये टैक्स लगा था उस वक्त शहर का शुमार जो है 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में होता था। इनकी जानिब से ये शिकवा भी किया गया है कि कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर किया जाए ताकि शहर से मसाइल का खात्मा हो सके। जी एक बार फिर से आपको बताएं कि हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में आज तीसरे रोज़ भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से इस हवाले से। जी इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल कराची भर में 10 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है, जहां पर पोलियो कतरे पिलाने के साथ साथ जो है इंजेक्टर के ज़रिए भी वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है, जो कि महकमा सियासत सिंध और EPI का बहुत ही अच्छा इकदाम है। ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को कतरे ज़रूर पिलवाएँ। इस हवाले से हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में, जहाँ पर EPI की इंचार्ज अनम साहिबा मौजूद है। इनसे पूछेंगे इस हवाले से। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताएं कितने बच्चे रोज़ाना यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं और वालिदैन को आप क्या पैगाम देंगी? यहाँ पर तकरीबन डेली की बेसिस पर 40 से 50 बच्चों की कवरेज है हमारे पास। और वालिदैन के लिए मेरा सबसे अहम पैगाम यही है कि पोलियो के कतरे आपने लाजमी अपने बच्चों को पिलवाना है अगर अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाना है। 2 कतरे पोलियो अपने पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को लाजमी दें। और अभी जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक मुहिम चल रही है जिसमें हम इंजेक्टर के थ्रू पोलियो के कतरों के साथ साथ पोलियो का टीका भी लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल बग़ैर दर्द के है। सब बच्चे को बस लगेगा और पता भी नहीं चलेगा। जिसकी अगर बच्चे की हिफाजत के हवाले से बात करें तो इसकी हिफाजत तकरीबन 100% तक होती है। ठीक है, तो बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोशिश करें कि अपने घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में सबको इस बात पर वो कन्विंस करें कि आपने लाजिम पोलियो के कतरे अपने बच्चे को देने हैं अगर अपने बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाना है तो। बहुत शुक्रिया। जैसे कि अनम ने बहुत अच्छा पैगाम दिया वालिदैन को कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं, जबकि जो टीमें घर घर आती हैं उनके साथ भी भरपूर ताउन करें, क्योंकि महकमा सियासत सिंध EPI का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि यहाँ पे तमाम वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही हैं। जी।